So welcome everyone to the super amazing biology live session. Today we are going to start with a new chapter, and what is that, my dear children? What is that? Yes, that is evolution. You got it right. Yes. Let me share the screen and we will start with the class. You all have little bit idea about it, right? Like how we got evolved. Little bit, not more, but yeah, little bit idea you must be having. Yes? Yes. Good noon, Samiksha. How origin took place, how origin of life happened, and then how, like what was that first thing which got developed? And before that, how this earth got developed? And before that, like what actually happened in the universe that the earth got formed? And what was that which got first formed on earth? There are so many questions. Some of the questions are answered to us by the scientists, and some questions have not been answered yet. Till date, no one could answer those questions. So still study is going on. Right? Yes? Okay. So we will be focusing on those aspects for which scientists have given us the answers. The other questions for which we don't have the answers, maybe you can become scientist and you can find out the answers. Right? So let's begin. Evolution. So what all things we need to learn in evolution that we should have in head? Right? That how exactly the origin of life took place. How exactly the origin of life happened. Right? So there were so many scientists. They came in. Obviously, human beings came after so many years. Before human beings, we had so many species, right? But those species were not able to type it out, right? Those species were not able to write books for us. So when human being got developed, they could study, and they finally gave so many theories, right? Before this might have happened, before this might have happened, and because of that, life got originated, right? So there are so many theories for the evolution of life. So we will be looking at so many theories. Now, human beings have a very different kind of nature. If I tell you today that I am not going to teach, I have just said that I am not going to teach, will you believe me? It's a theory. It's like a theory. You will assure it by talking to someone else, right? You will assure maybe by talking to Aman sir that Aman sir, really Neha ma'am is not going to teach us. You will just get an assurance, right? It happens or not. Evidences. We human beings work on evidences, right? If tomorrow I tell you you got selected in NEET exam, congratulations. Will you believe me blindly? No. You will say immediately, ma'am, show the certificate to me. Then I will believe you. Because that is the thing which you have to show to everyone. Now, you will not say, Neha ma'am said ki I got clarified, I got selected. That will not give you the admission. That report card will give you the admission. You require evidence, proof, right? Similarly, for so many theories given by so many scientists, people started to ask for evidences कि भाई मुझे proof दो, मुझे सबूत चाहिए, सबूत, तभी मैं मानूंगा आपका theory correct है, otherwise नहीं मानूंगा, right? तो फिर हमें कुछ evidences पढ़ने होंगे, है ना? हम कुछ सबूत देखेंगे कि कैसे evidences आए और कैसे हम वो चीजों को सीखे. I think you got the idea कि हमें पढ़ना क्या है इस chapter में. Please click on yes if we can start. Got the idea ना कि क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुआ, क्या क्या थियरीज है, उसके क्या क्या एविडेंसेस हैं, ये सारी चीजें हम सीखेंगे इसमें. ओके?
तो चलो, आप कहाँ पे हो अभी? वेयर आर यू नाउ? वेयर आर यू नाउ? एट योर होम, sweetest place, right? Where exactly? In home. At home, where exactly are you present? Are you on the floor? Are you on the bed? Are you on the chair? Wherever you are, that bed, that chair, you on the floor, wherever you are present on the crust of the earth, right? Everything which you see, the plants, the animals, you have beautiful decorations, items at your home, everything, each and everything is present on the crust of the earth. We are not inside the earth, we are on the earth. हम अर्थ के ऊपर है. कौन से लेयर पे? क्रस्ट. क्या बोलते हो इसको? क्रस्ट. इस क्रस्ट पे सब लोग हैं. आपको जो भी दिख रहा है होता हुआ आपके चारों ओर, सब कुछ अर्थ के क्रस्ट पे होता है, अंदर कुछ नहीं होता. ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि ये अर्थ आया कैसे. तो आंसर बहुत सिंपल है. हमारा बहुत बड़ा यूनिवर्स है, उससे अर्थ आया. तो क्वेश्चन ये था कि यूनिवर्स से अर्थ कैसे बना. पहला क्वेश्चन, यूनिवर्स से अर्थ कैसे बना. चलो, इसका मान लो मैंने आंसर दे दिया. अब दूसरा क्वेश्चन, अर्थ बनने के बाद इसमें लाइफ कैसे आई. हाउ लाइफ गॉट ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ. लाइफ आने के बाद ये ह्यूमन बीइंग कैसे आ गया, ये भी एक क्वेश्चन है. ये सारी चीजों की जो स्टडी कर लेता है उसी को बोलते क्या है? इवोल्यूशन. समझ आया? यूनिवर्स से अर्थ कैसे बना, अर्थ में लाइफ कैसे आई, लाइफ से पूरा ह्यूमन बीइंग कैसे डेवलप हुआ, यही आपका इवोल्यूशन है. सो इवोल्यूशन इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म. इज इट नॉट? स्टडी ऑफ, पीछे की चीजें पढ़ रहे हो ना आप, पीछे की चीजें. स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म. अगर डिटेल में लिखोगे तो क्या लिखोगे? इट इज स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म विच एक्सप्लेन्स हाउ अर्थ गॉट फॉर्म फ्रॉम द यूनिवर्स एंड हाउ लाइफ गॉट ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ. सिंपल है, यही आपका इवोल्यूशन है. ठीक है, दैट इज द डेफिनेशन फॉर इवोल्यूशन. आई होप समझ में आ गया है, रटना नहीं है. यस, चलो अब एक एक करके सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे. पहला क्वेश्चन क्या है? ओरिजिन ऑफ लाइफ. पहला क्वेश्चन क्या है? ओरिजिन ऑफ लाइफ. ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ. तो हमें पढ़ना क्या है इसमें कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ. इवोल्यूशन बेसिकली क्या है? लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ. मतलब उसके लिए आपको ये सीखना पड़ेगा कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स से अर्थ कैसे बना, अर्थ से लाइफ कैसे आया, और यही आपका कंप्लीट इवोल्यूशन है. समझ रहे हो ना? मैंने जो पहले बोला वही चीज यहाँ पे भी है. इसका आंसर ढूंढना है हमें. हाउ, ये कैसे होता है. वी नीड टू फाइंड आउट द आंसर फॉर इट. ठीक है, ये कैसे होता है, इसका आंसर चाहिए. समझे? हाँ, यस मंजरी, साक्षी, आप सब समझ रहे हो, है ना? अब हम सीखेंगे पहला क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स कैसे बना और उस यूनिवर्स से अर्थ कैसे बना, ये हमारा क्वेश्चन है. उसका आंसर हम देखने वाले हैं. तो ऐसा बोला जाता है बहुत सालों पहले. कितने सालों पहले? अराउंड 20 बिलियन ईयर्स अगो. 20 बिलियन ईयर्स अगो एक थियोरी दिया गया, मतलब बिग बैंग थियोरी. ये बोला जाता है ये बिग बैंग थियोरी कब हुआ? 20 बिलियन ईयर्स अगो. ये बिग बैंग थियोरी कब हुआ?
20 बिलियन ईयर्स अगो किसने दिया था? अबे लैमेट्रे। अबे लैमेट्रे, यस, 1931 में हुआ था, बिल्कुल सही। ऐसा अगर डेट आप नहीं याद करोगे तो ज्यादा बेटर है, बस ये याद रखो 20 बिलियन ईयर्स अगो, बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। अब यूनिवर्स कैसे बना? ऐसा बोला जाता है कि एक थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेंशन हुआ, है ना, ह्यूज टाइटैनिक एक्सप्लोजन, थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेंशन, मतलब कुछ ऐसा जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होता है ना, सुना होगा ना, बॉम्बे में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था 2011, राइट? तो बॉम्ब ब्लास्ट जब होता है तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, लोग मरते हैं उसमें। उसी तरह हमारा यूनिवर्स का भी फॉर्मेशन हुआ है एक एक्सप्लोजन से, थर्मोन्यूक्लियर, मतलब वहां की न्यूक्लियस एटम्स एक्सप्लोड कर गई। और पता होना चाहिए जब वो एक्सप्लोड करेगा कितना हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा और कितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, इसीलिए इसका नाम दिया गया थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेंशन। क्या हुआ? थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेंशन, वो फूट गए, फट गए, एक्सप्लोड हो गए। तो इतने छोटी सी जगह जो एक्सप्लोड हो गई, तो इतनी छोटी सी जगह में उसके पास टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। जब वो एक्सप्लोड हो गया तो बताओ क्या होगा? धीरे धीरे वो एक्सपैंड कर रहा है, तो बताओ टेम्परेचर कम होगा या ज्यादा होगा? अगर कम होगा यस पे क्लिक करो, अगर ज्यादा होगा नो पे क्लिक करो। कम होगा ना, क्योंकि इतने छोटी जगह में बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, वो एक्सप्लोड हो गया, तो धीरे धीरे टेम्परेचर कम होने लगेगा, होने लगेगा ना धीरे धीरे क्योंकि आप एरिया बढ़ा दिए हो। आप इतने छोटे से कंटेनर में सब्जी रखो, ठीक है, भाजी एकदम गरम गरम, उस भाजी को आप इतने बड़े कंटेनर में डाल दो तो वो भाजी जल्दी ठंडा हो जाएगा ना, वो जो आपने खाना बनाया है। क्यों? क्योंकि आपने एरिया को बड़ा कर दिया। वैसे ही यूनिवर्स जब एक्सप्लोड हुआ तो वो एक्सपैंड करने लगा, और जब वो एक्सपैंड करने लगा तो टेम्परेचर कम होने लगा, ठीक है। जब वो एक्सपैंड करने लगा, पहले हाई टेम्परेचर था, थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेंशन हुआ, यूनिवर्स एक्सपैंड होने लगा, फैलने लगा, जिससे कि टेम्परेचर कम होने लगा। और ये जो टेम्परेचर कम होने लगा तो उससे ना बहुत सारे गैलेक्सी बने, मेनी गैलेक्सीज। हर गैलेक्सी में अलग अलग तरह के स्टार, आपको जो कुछ भी अर्थ में दिखता है ना, सब कुछ मिलता था हर एक गैलेक्सी में। स्टार, बादल, बहुत सारे गैसेस, डस्ट, ये बहुत सारे गैलेक्सी ऐसे बने। उन्हीं में से एक गैलेक्सी ऐसा था जिसका नाम था मिल्की वे गैलेक्सी। हिंदी में बोलते हैं उसको आकाश गंगा, बिल्कुल प्रेरणा, आकाश गंगा। और पता है आपको अर्थ कौन सा गैलेक्सी से बना है? अर्थ कौन सी गैलेक्सी में है? मिल्की वे गैलेक्सी में है। अर्थ कौन सी गैलेक्सी में है? मिल्की वे गैलेक्सी में, आकाश गंगा, समझे ना? तो यही है आपका बिग बैंग थियरी। एक्सप्लोजन हुआ, यूनिवर्स आज भी एक्सपैंड कर रहा है, इसीलिए देखो टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है। लोग बोलते हैं ना ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है। एक रीजन वो है बढ़ने का। दूसरा रीजन क्या है कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है। इसी की वजह से हमारा टेम्परेचर मेंटेन हो जा रहा है कि नहीं? एक कारण है कि टेम्परेचर को कम करेगा, दूसरा है टेम्परेचर को ज्यादा करेगा। इसकी वजह से हमारा टेम्परेचर थोड़ा बैलेंस्ड है, समझे? बट स्टार्टिंग में सिर्फ टेम्परेचर कम होता गया, कम होता गया, और इतना कम हो गया कि आज हम सब लोग सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि इतने ज्यादा टेम्परेचर में तो कोई सरवाइव नहीं करता। तो धीरे धीरे टेम्परेचर कम हुआ, वो एक्सपैंड होता गया, एक्सपैंड होता गया, और अर्थ का फॉर्मेशन हुआ।
ठीक है, कहां से? मिल्की वे गैलेक्सी से, मिल्की वे गैलेक्सी से। ठीक है, तो मिल्की वे गैलेक्सी में आपका क्या बन गया? फॉर्मेशन ऑफ अर्थ कब बना? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, है ना, अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। हाँ प्रेरणा, बिल्कुल। तो सोचो जब पहले अर्थ बना तो क्या उसके पास कुछ था? कोई एटमॉस्फेयर था? कुछ नहीं था। धीरे धीरे उसमें कुछ एटमॉस्फेयर गैसेस आने लगे, तो उसको हमने बोला प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। प्रिमिटिव का मतलब बहुत पुराना, प्रिमिटिव का मतलब बहुत पुराना, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसा था? देखो, क्या ऑक्सीजन दिख रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, अमोनिया है, वाटर, वाटर वेपर है। ऑब्वियसली टेम्परेचर इतना ज्यादा था तो पानी तो वेपर के फॉर्म में ही होगा ना, तो वाटर वेपर था। तो मुझे ये बताओ, क्या ऑक्सीजन दिख रहा है? यस और नो पे क्लिक करना। अकेला ऑक्सीजन दिख रहा है? नहीं ना, नहीं दिख रहा है। तो सिंस ऑक्सीजन नहीं था तो प्रिमिटिव जो इन्वायरमेंट था वो कैसा इन्वायरमेंट था? रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग नहीं था। ऑक्सीडाइजिंग वो तब होता जब वो ऑक्सीजन देता किसी को, उसके पास तो ऑक्सीजन है ही नहीं। तो बोलते हैं जो प्रिमिटिव इन्वायरमेंट है, मतलब जो था, उसका क्या नेचर था? रिड्यूसिंग नेचर था। ध्यान से सुनो, क्या नेचर था? रिड्यूसिंग नेचर था। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन नहीं था। समझे? अब अपना स्टार सन, वो सन क्या करेगा? वाटर वेपर को तोड़ेगा, उससे यूवी रेज आएगी, वाटर वेपर को तोड़ेगा, तोड़ के हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनाएगा। यही ऑक्सीजन जो ओ है, आपका जो ऊपर का लेयर है ना, ओजोन लेयर, उससे क्या बना? ओजोन का फॉर्मेशन हुआ। धीरे धीरे क्या फॉर्म हुआ? ओजोन का फॉर्मेशन हुआ। समझे? ओजोन, बाकी ये सब कंबाइन होते गए, ये सब कंबाइन होके क्या बनाए? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। समझे? तो प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में क्या क्या बन गया? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन बन गया। लेकिन वाटर किसके फॉर्म में था? वाटर वेपर के फॉर्म में था। किसके फॉर्म में था? वाटर वेपर के फॉर्म में था। आपको याद है? ओजोन बन चुका है, टेम्परेचर कम हो रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो बताओ वाटर वेपर को क्या होगा? वाटर वेपर को क्या होगा? वाटर साइकिल सबको पता है ना। वाटर वेपर जब टेम्परेचर कम होता है तो वाटर वेपर किसके फॉर्म में गिरता है? अभी हर जगह महाराष्ट्र में कितना, क्या हो रही है अभी? कौन सा सीजन चल रहा है? वाटर वेपर जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वाटर वेपर क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा, है ना। तो वही वाटर वेपर जब टेम्परेचर कम हुआ तो पानी के फॉर्म में धरती पे गिरा, बारिश के फॉर्म में। पता है, अर्थ पहले कुछ ऐसा था, ऐसे बहुत सारे डिप्रेशंस थे, उस पे गड्ढे थे। वो डिप्रेशंस किससे फिल हो गए? बारिश के पानी से। और फिर सबसे पहले क्या बना अर्थ पे? सबसे पहले क्या आया? ओशियन आया। सबसे पहले समुद्र बना। समझे? कुछ समझ आया? अब एक डेटा है, देखो, यूनिवर्स का फॉर्मेशन बना था, बिग बैंग थियरी को फॉलो करते हो तो 20 बिलियन ईयर्स अगो। अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। अभी अभी के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लाइफ कब बना अर्थ पे? तो लाइफ बनने में बहुत टाइम लगा। 4.5 मतलब 500 मिलियन ईयर्स लगे, तब जाके लाइफ बना। डिफरेंस है ना। 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ बना एंड 4 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ आया। मतलब 500 मिलियन ईयर्स टाइम लगा
अर्थ पे लाइफ को आने में, समझे, लाइफ को लाने में। पहला एक नॉन सेल्यूलर फॉर्म बना, पहला नॉन सेल्यूलर बना फॉर्म लाइफ का 3 बिलियन ईयर अगो, 3 बिलियन ईयर्स अगो। तो अब हमें ये देखना है, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि लाइफ बना 4 बिलियन ईयर्स अगो, यहाँ पे बोल रही हूँ नॉन सेल्यूलर फॉर्म 3 बिलियन ईयर्स अगो बना, राइट। तो ये जो चीजें हैं वो क्या है, दैट वी हैव टू सी, ठीक है। जस्ट मैं समझाऊंगी वो सारी चीजें सबको। हाँ समीक्षा, बिल्कुल बिल्कुल, वो लोग वही है, ठीक है। वी विल डिस्कस, हम डिस्कस करेंगे वो सारी चीजों को, ठीक है। अभी तक क्या समझ आया कि जितने डिप्रेशन थे वो पानी आ गए उसमें, और उससे आपका ओशियन का फॉर्मेशन हो गया। क्या बन गया, ओशियन का। चलो एक बार रिवाइज कर लो इसको, खुद से रिवाइज करो तो। चलो एवरीवन टर्न द वीडियो ऑन। कहानी है, इवोल्यूशन एक कहानी है, ठीक है। टर्न द वीडियो ऑन, क्लोज योर आईज एंड जस्ट ट्राई टू रिकॉल, जस्ट ट्राई टू रिकॉल क्या क्या सीखा अभी। हमने सीखा कि यूनिवर्स कैसे बना, 20 बिलियन ईयर्स अगो बना। कैसे बना भाई, बिग बैंग थियरी को हमने फॉलो किया कि एक एक्सप्लोजन हुआ इतना ज्यादा भयंकर कि उससे बहुत सारे गैलेक्सी बन गए, टेम्परेचर कम होता गया, गैसेस मिलके क्या बना दिए, बहुत सारा क्लाउड बन गया, डस्ट बन गया, ये सारी चीजें। वाटर वेपर जो था वो टूटकर हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन गया, वही ऑक्सीजन ओजोन बनाया। फिर हमें जो इन्वायरमेंट मिला, प्रिमिटिव इन्वायरमेंट जो था वो रिड्यूसिंग नेचर का था, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं था, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर, ये सारी चीजें थी। फिर धीरे धीरे टेम्परेचर और कम होता गया, वाटर वेपर पानी में चेंज होता गया, और अर्थ में जितने डिप्रेशन थे वो पानी से भर गए, और उससे ओशियन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। क्या सबको ये समझ आ गया। अब हम देखेंगे कि ओशियन में पानी के अंदर वो क्या चीजें हुई जिससे कि लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। क्योंकि अभी तक तो हमें बस यही पता है कि हमारा इन्वायरमेंट रिड्यूसिंग है, हमें यही पता है कि हमारे पास मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, H2 एंड वाटर यही अवेलेबल है। तो पक्का है, पक्का एकदम श्योर शॉट हम हो जाएंगे कि लाइफ का फॉर्मेशन इन्हीं केमिकल से हुआ होगा और ओशियन के अंदर ही हुआ होगा। एवरीवन कैन ओपन योर आईज नाउ, ठीक है। चलो, एंड यू कैन टर्न द वीडियो ऑफ। कूल। अब उसके बाद हम सीखने वाले हैं कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है। ओशियन तो बन गया, तो लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, सेकंड क्वेश्चन है हमारा। हाउ, ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ। हमारे दिमाग में तो यही है ना कि केमिकल से हुआ, हमारे दिमाग में यही है क्योंकि केमिकल प्रेजेंट था, उन्हीं केमिकल में कुछ कुछ हुआ है और जिससे कि लाइफ का ओरिजिन हो गया। बट हम ह्यूमन बीइंग थोड़े डेवलप्ड है, पहले वाले साइंटिस्ट को इतना समझ नहीं आया था, तो उन्होंने बहुत सारे पुराने पुराने थियोरी दिए, तो हमें उन थियोरीज को सुनना है कहानी की तरह, ठीक है। पुराने पुराने थियोरी, एंशिएंट थियोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो पहला सुन लो, थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, समझे। मतलब भाई अर्थ का फॉर्मेशन, लाइफ का ओरिजिन एक स्पेशल पावर से हुआ है जो बोलता है कि अर्थ बस 4000 साल पुराना है। कुछ ये सब थियोरी मत मानो, 20 बिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स बना, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ बना, ये सब बकवास है, मत मानो ये सब। भगवान आए, स्पेशल पावर है और उसी स्पेशल पावर ने सब कुछ बनाया, ठीक है, समझे। ऑल राइट, मान ने किया। तो हिंदू माइथोलॉजी क्या बोलती है कि पहले जो पहला इंसान, मेल जो मेल था,
उसका नाम मनु था, और जो फीमेल थी वो श्रद्धा थी। श्रद्धा या शारदा कुछ ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ये हिंदू माइथोलॉजी की, वो दो इंसान आए और उसी दो इंसान से पूरा सब कुछ आया, ठीक है, मनु एंड शारदा। बाइबल क्या बोलता है कि कौन आए? एडम एंड ईव। कौन आए पृथ्वी पे? एडम एंड ईव। इन लोगों ने पूरा पृथ्वी बना दिया, पूरा लाइफ बना दिया। कितने दिनों में बनाया? 6 दिनों में बनाया। कितने दिनों में बनाया? बस 6 दिनों में, 6 days। तो उन्होंने अपने अपने गॉड पे बिलीव किया, बोला कि ये स्पेशल क्रिएटर है, इन्होंने लाइफ को बनाया। बाइबल बोलता है 6 दिन में, हिंदू माइथोलॉजी बोलती है मनु और शारदा आए और उन्होंने पूरे लाइफ को बना दिया। समझे? तो ऑब्वियसली हम इस पे बिलीव नहीं करते हैं, राइट? कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो और भी थियरीज आए। और थियरीज क्या आए? कॉस्मोजोइक, कॉस्मोजोइक थियरी। और क्या? पैंसपर्मिया थियरी। कॉस्मोजोइक या पैंसपर्मिया या स्पोर थियरी, ये क्या बोलता है कि दूसरे हेवनली बॉडी जो थे ना यूनिवर्स में, और भी बॉडी थे, दूसरे हेवनली बॉडी से स्पोर आया, वहां से स्पोर गिर गया अर्थ पे। क्या आया? एक स्पोर आया वहां से, और वही स्पोर से लाइफ ओरिजिनेट हुआ। समझे? ये है कॉस्मोजोइक थियरी। क्या है ये? कॉस्मोजोइक थियरी एक्सप्लेन्स दैट फ्रॉम द हेवनली बॉडी एक स्पोर आया और उसी स्पोर से पूरी लाइफ बनी। समझा सबको? तीसरी थियरी देखो, थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनरेशन। थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनरेशन, ये क्या बोलता है कि नॉन लिविंग थिंग्स से अचानक से लाइफ बन गया। स्पॉन्टेनियस मतलब क्या? अचानक। तो ये बोलता है नॉन लिविंग थिंग्स से अचानक से लाइफ का ओरिजिन हो गया, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग से आया ना, इसीलिए इसको बोलते हैं थियरी ऑफ अबायोजेनेसिस या फिर थियरी ऑफ ऑटोजेनेसिस। मतलब खुद से लाइफ बन गया नॉन लिविंग थिंग से। मतलब कहीं पे आप पेपर वेपर जमा करके रख दो, मरे हुए चीजें रख दो, सब पेपर वेपर, मोबाइल फोन, हेडफोन, और अचानक से उसमें से लाइफ ओरिजिन हो जाएगा, ऐसा कहना था थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन का, जो कि ऑब्वियसली क्या था? गलत था ना। गलत था या नहीं? बिल्कुल गलत था। नॉन लिविंग थिंग से कैसे लाइफ आ जाएगा यार? नहीं आएगा ना। अब इसके ग्रेटेस्ट सपोर्टर कौन थे? एक साइंटिस्ट, वैन हेलमोंट। इन्होंने सपोर्ट किया इस चीज को कि नहीं, नॉन लिविंग थिंग से ही लाइफ ओरिजिन हुआ है। वैन हेलमोंट, ओके। बट इसको डिसअप्रूव किसने किया है? इसको डिसअप्रूव किसने किया है? रेडी, स्प्लैंजानी एंड लुइस पास्चर ने। रेडी, स्प्लैंजानी एंड लुइस पास्चर ने, उन्होंने बोला कि लाइफ लिविंग थिंग से बनी है। क्या? थियरी का नाम दिया थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। उन्होंने बोला लिविंग चीजों से ही लिविंग बनी है, ठीक है। हाँ, लिविंग चीजों से ही लिविंग चीजें बनी है, ठीक है। थियरी ऑफ बायोजेनेसिस मतलब लिविंग ही लिविंग को दिया। द न्यू लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल प्रेरणा, समझे। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। मीट और मैगोट को लिया, ठीक है, एनिमल्स और वेजिटेबल ब्रॉथ को लिया, ठीक है, कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट किया, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, बहुत सारी चीजें की। उससे उन्होंने पता किया कि हाँ, जब मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म रखता हूं तभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें कीड़े वीड़े आते हैं, ठीक है। तो थियरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या है एक्चुअली आपका? ये फॉलो करता है रुडोल्फ वर्चो को भी। रिमेंबर सेल थियरी क्या है आपका? सेल थियरी में रुडोल्फ वर्चो ने एक मॉडिफिकेशन किया था कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये वाला स्टेटमेंट किसने दिया था?
रुडोल्फ वर्चो ने दिया था, समझे? तो बेसिकली थियरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या फॉलो करता है? रुडोल्फ वर्चो का स्टेटमेंट को फॉलो करता है कि न्यू सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, ओके। अब है आपका फाइनल वाला जो हम सबको समझ आएगा, मॉडर्न थियरी या केमिकल थियरी। किसने दिया था? ओपेरिन एंड हैल्डेन ने। तो इसको ओपेरिन हैल्डेन थियरी भी बोलते हैं। ये आपका बेस्ट है, बेस्ट थियरी। ठीक है, तो ये बोलेगा कि केमिकल के हेल्प से बना है लाइफ। तो पहले ओशियन था, अर्थ ओरिजिनेट किया, उसमें सबसे पहले ओशियन बना। तो प्रिमिटिव लाइफ कहाँ ओरिजिनेट हुआ है? पानी में, ये तो पता है। जो भी लाइफ ओरिजिनेट हुआ है वो कहाँ ओरिजिनेट हुआ है? पानी में। कैसे? कुछ मॉलिक्यूल्स थे वहां पे ना, मीथेन था, H2 था, H2O था, अमोनिया था, कार्बन डाइऑक्साइड था, उन सब के हेल्प से बना है। किससे बना है? फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। समझ रहे हो? नॉन लिविंग, ऐसा नहीं कि पेपर रख दिया बन गया इससे लिविंग ऑर्गेनिज्म, नहीं। किससे बना? पानी में बना। पानी में किससे बना? नॉन लिविंग चीजों से बना। ऑब्वियसली मीथेन आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, नॉन लिविंग चीजों से बना, बट उसका नेचर क्या था? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, आरएनए बना, प्रोटीन बना, धीरे धीरे उससे सेल बना। ठीक है, तो अर्थ कब ओरिजिन हुआ? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। पहला लाइफ कब आया? 4 बिलियन ईयर्स अगो। हम उसी को समझने वाले हैं। ठीक है, रेडी टू अंडरस्टैंड? पहले ये देख लो, इसका ना लोगों ने प्रूफ मानना स्टार्ट किया कि प्रूफ दो, इसका प्रूफ दो हमें कि उसी केमिकल से बना है लाइफ, है ना? तो फिर इसके प्रूफ के लिए लैब में एक्सपेरिमेंट किया गया। लैब में एक्सपेरिमेंट किया गया। उन्होंने वैसा ही पानी लिया। इन्वायरमेंट कैसा लिया? रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट लिया, क्योंकि पहले ऑक्सीजन तो नहीं था। फिर देखा कि सच में क्या हो रहा था, उसमें क्या बने? ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो कैसा इन्वायरमेंट लिया होगा उन्होंने? रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट लिया होगा। टेम्परेचर ज्यादा लिया होगा या कम? टेम्परेचर ज्यादा लिया होगा, ऑब्वियसली उस समय टेम्परेचर ज्यादा था ना, तो टेम्परेचर ज्यादा लिया। मतलब सब कुछ वैसा ही लिया जो लोगों ने सोचा था कि उस समय अर्थ में ऐसा होगा। किसने किया था ये? यूरे एंड मिलर ने। किसने किया था? यूरे एंड मिलर ने। तो यूरे एंड मिलर ने क्या ले लिया? सारे गैसेस ले लिए, मीथेन, अमोनिया, वाटर, हाइड्रोजन, और इसको बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पे डाल दिया, 800 डिग्री सेल्सियस। एकदम इलेक्ट्रिसिटी वोल्ट दे दिया और टेम्परेचर दे दिया 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मीथेन लिया, अमोनिया लिया, हाइड्रोजन लिया। किस रेशियो में? मीथेन और अमोनिया को 2:2 लिया और हाइड्रोजन को कम लिया। ठीक है, उससे इन्होंने पता किया, जब कुछ देर तक उसको छोड़ दिया, कुछ दिनों तक उसको छोड़ दिया ऐसे ही, तो देखा कि अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ। एलानीन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ये सब चीजें बनने लगी। अब मुझे ये बताओ, आपकी बॉडी में प्रोटीन है कि नहीं? प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, बोलते हो कि नहीं? यस और नो? बोलते हो ना? तो बताओ प्रोटीन किससे बना है? अमाइनो एसिड से बना है ना। और ये अमाइनो एसिड कैसे बना? इन्हीं केमिकल की हेल्प से बना। तो देखो कैसे कैसे लाइफ स्टार्ट हुई, कहाँ, मतलब कितना इम्पॉसिबल लगता है ये सोचना कि वो अमाइनो एसिड ने ये पूरा बॉडी दिया है कि नहीं? कितना इम्पॉसिबल है ये चीज, राइट? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है जो हमें पता नहीं है, क्योंकि लोग नहीं थे ना उस समय। उस समय ह्यूमन बीइंग कोई जिंदा नहीं था, कोई भी नहीं था, तो हमें कुछ भी नहीं पता है। पूरी चीजें थियरी पे चल रही है, कुछ कुछ प्रूफ दिए गए हैं, हम उसको मान लिए हैं, है ना? राइट?
यस, हमारी बॉडी में NaCl पाया जाता है। हमारे बॉडी में क्या पाया जाता है? NaCl। और बताओ, ओशियन से सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है कि नहीं? ओशियन से सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है ना। इसका मतलब क्या है? हमारी बॉडी में भी NaCl है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमारा भी ओरिजिन कहाँ से हुआ है? ओशियन से हुआ है। समझे? उस समय लोगों को, उस समय ऑक्सीजन नहीं था ना, तो जो भी ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ होगा वो विदाउट ऑक्सीजन सरवाइव करता होगा। उसको क्या बोलोगे? एनएरोबिक। उसका न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा? क्या कर दिया मैंने? उसका न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा? केमिकल से आएगा, क्योंकि उस समय सिर्फ केमिकल्स थे। क्या वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। उस समय तो कुछ डेवलप ही नहीं हुआ था, तो वो दूसरे पे डिपेंडेंट होता। तो बताओ, पहला लिविंग बीइंग जो बना वो क्या था? प्रोकैरियोट था। जिसका नेचर क्या था? कैसे खाना खाता था? कीमो हेट्रोट्रॉफिक था। क्या वो ऑक्सीजन चाहता था? नहीं, एनएरोबिक था। तो पहला जो प्रोकैरियोट बना, देखेंगे हम इसको और डिटेल में, बट इतना जानो कि पहला जो प्रोकैरियोट बना होगा वो एनएरोबिक होगा, हेट्रोट्रॉफिक होगा, दूसरों पे डिपेंडेंट होगा। किस पे डिपेंडेंट होगा? केमिकल पे डिपेंडेंट होगा। तो पहला लिविंग बीइंग जो बना वो एनएरोबिक है, और नेचर कैसा है उसका? कीमो हेट्रोट्रॉफिक। नेचर कैसा है? कीमो हेट्रोट्रॉफिक। क्या सबको समझ आया यहाँ तक? कैसे कैसे चीजें हुई? प्लीज क्लिक ऑन यस। एकदम कहानी है इवोल्यूशन, बिल्कुल कहानी है। हाँ, वनश्री, बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हुआ, बिल्कुल सही। प्रोकैरियोटिक मतलब बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हुआ, बिल्कुल बिल्कुल कहानी है इवोल्यूशन। समझे? अगर आप अलग अलग पढ़ोगे ना, पहले मैं ये पढ़ लेता हूँ, पहले वो पढ़ लेता हूँ, ऐसे करोगे तो इवोल्यूशन समझ नहीं आएगा। कहानी के जैसा पढ़ लो, इवोल्यूशन सब समझ आ जाएगा, है ना? समझे? चलो, तो ये हो गया आपका प्रूफ यूरेल मिलर के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे कि देखो कैसे कैसे लाइफ बना, पानी में क्या क्या चीजें हुई, एंड ऑल दो स्टफ्स। देखो, पहले क्या हुआ? इन्वायरमेंट बताओ कैसा था? रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था ना। पहले रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था, है ना? पहले रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था, समझे? तो रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट में क्या हुआ? धीरे धीरे वो कंबाइन होने लगे, ये धीरे धीरे कंबाइन होने लगे, और क्या बनाए? शुगर बनाए, फैटी एसिड बनाए, ग्लिसरॉल बनाए, अमाइनो एसिड बनाए, नाइट्रोजनस बेसिस बनाए। आप इसको अगर ध्यान से देख लो, आपको पता चलेगा आपकी बॉडी में यही सारी चीजें हैं। आपकी बॉडी में ग्लूकोज है, फैटी एसिड है, लिपिड है ना, आपका सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बना है, अमाइनो एसिड है, नाइट्रोजनस बेस, आपका डीएनए, आपका डीएनए किससे बना है? नाइट्रोजनस बेसिस है ना उसमें, प्यूरीन एंड पायरिमिडिन। याद है, मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़ा था। तो ध्यान से देखो, आपकी बॉडी में जो भी चीजें पाई जाती है सब कुछ बन रहा है यहाँ पे, है ना? धीरे धीरे पॉलीसेकेराइड बना, फैट बना, प्रोटीन बना, न्यूक्लियोटाइड बना, न्यूक्लिक एसिड बना। न्यूक्लिक एसिड बना देगा डीएनए, आरएनए, समझ रहे हो ना? अलग अलग प्रोटीन, अलग अलग चीजें, और इस तरह से आपका क्या बनेगा? पहला पहला नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनेगा। मतलब सब कुछ एक जगह आ गया, कोई मेम्ब्रेन नहीं है उसके चारों तरफ, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है उसके चारों तरफ, सब कुछ एक जगह एक्यूमुलेट हो गई। जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड बने सब कुछ एक जगह एक्यूमुलेट हो गई, उसको बोला गया प्रोटोबायंट। क्या बोला गया? प्रोटोबायंट। समझे? जब सब कुछ एक्यूमुलेट हो गया एक जगह, प्रोटीन, लिपिड्स, फिर आपका क्या है वो, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड,
जब एक जगह एक्यूमुलेट हो गया उसको बोला हमने प्रोटोबायंट, समझे, प्रोटोबायंट। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि उनमें देखा गया जो प्रोटोबायंट थे ना, धीरे धीरे क्या हो गया, वो मूव करने लगे, कुछ बाइनरी फिजन शो करने लगे, तो उसको बोला गया माइक्रोस्फीयर, माइक्रोस्फीयर। और यही है आपका फर्स्ट लिविंग सेल, माइक्रोस्फीयर। और यही है आपका क्या, पहला लिविंग सेल, जिसके पास कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है अभी चारों तरफ, समझे, कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है चारों तरफ इसका। जब आपका सेल मेम्ब्रेन बन जाएगा तो वो बन जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल। अभी समझ आ रहा है कुछ, सब कुछ एक साथ आ गया, देखा गया कि वो डिवीजन करने लगा, उसको हमने नाम दे दिया पहला लिविंग सेल। तो पहला लिविंग सेल क्या था, माइक्रोस्फीयर, जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं था, समझे। अब देखो, सबसे पहले बनेगा मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर, समझ रहे हो, प्रोटोबायंट से माइक्रोस्फीयर बना, माइक्रोस्फीयर के चारों तरफ मेम्ब्रेन अगर बन गया तो प्रोकैरियोट बन गया। और वही प्रोकैरियोट आपका जो सबसे पहले बना वो क्या है, कीमो हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर है। पहले क्या था वो, कीमो हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर, फिर धीरे धीरे क्या होगा, कीमो ऑटोट्रॉफिक होगा, फिर धीरे धीरे ऑटोट्रॉफिक होगा, और फाइनली आपको धीरे धीरे क्या मिलेगा, यूकैरियोट मिलेगा। धीरे धीरे यूकैरियोट, धीरे धीरे यूकैरियोट मिलेगा। और अगर यूकैरियोट मिल गया तो उस यूकैरियोट से आपको धीरे धीरे सारे प्लांट मिलेंगे और सारे एनिमल मिलेंगे। कुछ समझ आया, कुछ भी समझ आया यहां तक, एवरीवन अंडरस्टूड। देखो इस स्लाइड में जो जो अंडरलाइन चीजें की हुई है ना, पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करना है, इस स्लाइड में जो मैंने अंडरलाइन किया है उसको बस लिखना है कहानी के जैसे, जो मैंने बोला, मैंने जो जो बोला, आप कहानी के जैसे लिख सकते हो उसको। रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, प्रोटीन सब बनता गया। उसके बाद एक वो सारे एक्यूमुलेट हो गए एक जगह पे, उसको हमने नाम दे दिया प्रोटोबायंट, उसी को हम बोलते हैं पहला लिविंग फॉर्म है। उसके चारों तरफ पानी का लेयर बन गया, वो थोड़ा डिविजन करने लगा तो माइक्रोस्फीयर बोला। उस माइक्रोस्फीयर, छोटा सा जो स्फीयर जैसा बना, उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन बन गया और वो पहला प्रोकैरियोट बना। उस प्रोकैरियोट का नेचर एनारोबिक था, कीमो हेट्रोट्रॉफिक था। धीरे धीरे वो कीमो ऑटोट्रॉफिक हुआ, फिर वो धीरे धीरे ऑटोट्रॉफिक हुआ, और धीरे धीरे यूकैरियोट बना, और वो यूकैरियोट से धीरे धीरे पूरा प्लांट बना और पूरे एनिमल्स बने। सबको समझ आया क्या है इवोल्यूशन, एवरीवन अंडरस्टूड। ये है कहानी इवोल्यूशन की, समझे। तो अब हम इन चीजों को थियोरी में पढ़ेंगे। एवरीवन अंडरस्टूड, प्लीज क्लिक ऑन यस दोज हु हैव अंडरस्टूड। जिसको समझ आ गया प्लीज क्लिक ऑन यस। समझ आ गया सबको, चलो अब हम क्या पढ़ेंगे, एविडेंसेस पढ़ेंगे। हमने ये तो पढ़ लिया थियोरी, पूरा थियोरी पढ़ लिया ना, अब हमें क्या पढ़ना है, एविडेंसेस। सबूत क्या है भाई, सबूत बताओ, सबूत, एविडेंसेस। कौन से बेसिस पे बोल रहे हो कि हमारा अर्थ इतने साल पहले बना, कौन से बेसिस पे बोल रहे हो कि लाइफ का ओरिजिन 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हुआ, सॉरी हाँ, लाइफ का ओरिजिन 4 बिलियन ईयर्स अगो है ना, 4 बिलियन ईयर्स अगो हुआ, कौन से बेसिस पे बोलोगे। तो उसके लिए एविडेंसेस चाहिए, तो हमने बहुत सारे एविडेंसेस को सीखना है। फॉसिल से रिलेटेड होंगे, पैलेंटोलॉजिकल, बहुत सारे एविडेंसेस है, हम धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। बहुत सारे एविडेंसेस है, अभी तक बहुत सारे एरा बने, बहुत सारे पीरियड बने, ये सब चीजें हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, एविडेंसेस नहीं डिस्कस करेंगे, कल डिस्कस करेंगे एविडेंसेस।
बुक को फॉलो करो, जो महाराष्ट्र बोर्ड का बुक है ना, बहुत अच्छा है। इवोल्यूशन का जो चैप्टर है ना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको पढ़ो और फिर जो मैंने बोला है उसको रिकॉल करके देखो कि क्या समझ आ रहा है जो बुक में लिखा है। ठीक है, यहां तक सबको समझ आ गया ना? एवरीवन अंडरस्टूड? यस। तो ये है हमारी इवोल्यूशन की कहानी। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड इट, है ना? थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई डाउट है प्लीज आस्क।